Good morning, class 9. Now we start your lesson. I am going to start your lesson. Today's topic is participation of women in revolution. क्रांति में महिलाओं की भूमिका. सबसे पहले हम लोग गेन के बारे में देखेंगे. गेन मीन्स उन लोगों को भाग लेने से क्या फायदा मिला या क्या ये रहा. चलिए. Women displayed a great interest in the revolution and played an active and important role in the events which brought about significant changes in French society. Since the very beginning, the women had been very active in all the events related to the revolution, as has already been started. When the men were busy fighting at the front, the women took up responsibility of earning the livelihood and taking care of their family. अब हम लोग बात करते हैं महिलाओं की. तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि महिलाओं ने क्रांति में शुरू से ही बहुत रुचि दिखाई. वह ऐसी सभी घटनाओं में महत्वपूर्ण जो है सो भूमिका निभाई जिसने फ्रांस सोसाइटी में महत्वपूर्ण बदलाव लाए थे. शुरुआत से ही महिलाएं क्रांति से संबंधित सभी घटनाओं में बहुत सक्रिय थी. जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, जब पुरुष जो है मोर्चे पर लड़ने के लिए जाते थे, महिलाएं जो है घर की रोजी रोटी के लिए, आजीविका कमाने के लिए, अपने परिवार की देखभाल करने की जिम्मेदारी जो है सो वो लोग उठाती थी. On the 5th October 1789, a large number of women set out for the royal palace at Versailles to fetch the king. The crowd broke upon the gates, entered the palace, and ransacked it. It seemed as if they would tear the queen to pieces. The women forced the king and his family to leave Versailles for Paris. A few days later, the assembly too followed the king. Thus, the women helped significantly in shifting the seat of government from Versailles to Paris. Similarly, women gave a major thrust to the instruction that took place during the food riots of 1794-1795. 5 अक्टूबर 1789 को बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने राजा को निकालने के लिए, राजा को वहां से निकालने के लिए राजा के शाही महल की ओर जो है सो वो लोग निकल पड़ी. भीड़ ने फाटक खोल दिया और महल में प्रवेश कर गए और प्रवेश करके तोड़फोड़ करने लगे. और वो उस दिन ऐसा लग रहा था कि वो लोग रानी को टुकड़े टुकड़े कर देंगे. महिलाओं ने क्या किया, राजा और उनके परिवार को वारसा छोड़ करके पेरिस जाने के लिए मजबूर कर दिया. कुछ दिनों के बाद वहां के दरबारी भी जो है राजा का अनुसरण किए. वो लोग भी जो है सो महल को छोड़ करके जो है वो पेरिस के लिए निकल पड़े. इस प्रकार से महिलाओं ने क्या की, सत्ता का हस्तांतरण जो है वर्साइल से पेरिस में कर दिया. उसी तरह से आगे भी हम लोग देखेंगे. फिर क्या हुआ था कि जब 1794 से 1795 के लिए भोजन के लिए जब दंगा शुरू हुआ, तो इसमें भी इन लोगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. In fact, the women from the very beginning had been playing a very active role in the events that brought about a number of significant changes in French society. They believed that their participation in the revolutionary activity would make the revolutionary government do effort to improve their lives. It is worth mentioning that most of the common women had to work hard to earn their livelihood. Many of them worked as seamstress or laundress. Some did the job of selling flowers, fruits, and vegetables at the market, and some performed the duties of domestic servant in the houses of the rich and well-to-do person. Most of the women belonging to third estate were illiterate and lacked education and job training. Only women belonging to aristocracy could go to convent to study. They had no say in their marriages. Their marriages were arranged by their parents. Working women in particular had to work hard. They had to perform different domestic chores like cooking, fetching water, and rearing the children. Still, they could not earn as much as the men folk. The wages they earned were much lower than their male counterparts. Under impression of the traditional views prevailing in the society, it was believed that women were biologically and socially different from men. Thus, the domestic roles and
and not the public or political ones, were more suitable for them. Even the enlightened philosophers and writers like Rousseau and Marquis de Condillac believed that the proper vocation for a lady was that of a housekeeper. देखें तो वास्तव में शुरुआत से ही महिलाएं जो है उन सभी घटनाओं में सक्रिय भूमिका निभा रही थी जो फ्रांसीसी समाज में जो है महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे थे। उनका मानना था कि क्रांतिकारी गतिविधि में उनके शामिल रहने से सरकार जो है उनके जीवन को जो है, जो क्रांतिकारी सरकार जो भविष्य में बनेगी वह उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। यहां यह बात ध्यान देने लायक है कि जो कॉमन औरतें हैं, जो सामान्य औरतें थे, उन्हें अपना जीवन यापन के लिए काफी कठिन मेहनत करना पड़ता था। उनमें से कई जो है सिमस्ट्रेस या लॉन्ड्रेस के रूप में काम करते थे। कुछ जो है, मैं आपको सिमस्ट्रेस और लॉन्ड्रेस का मीनिंग आगे ये बता दूंगा। कुछ जो है औरतें जो बाजार में फूल फल और सब्जियां बेचने का काम किया करती थी। कुछ अमीर और अच्छे घरों में जाकर के जो है घरेलू नौकरों की जो है घरेलू कामों में मतलब घरेलू नौकर बन के घर की काम में लगाई जाती थी। इनमें से ज्यादातर महिलाएं जो थी वो थर्ड स्टेट की थी, समाज के तीसरे वर्ग की थी, जो अनपढ़ थी और उनमें शिक्षा और नौकरी की, उस समाज में शिक्षा और नौकरी की का अभाव था। केवल अभिजात वर्ग की महिलाएं ही जो है पढ़ने के लिए कॉन्वेंट जा सकती थी। उसके अलावे उनका जो है अपनी शादियों में उनका राय नहीं जाना जाता था। उनकी विवाह की व्यवस्था उनके माता पिता ही करते थे। विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उन्हें खाना पकाना, पानी लाना, बच्चों को पालने जैसे घरेलू काम करने पड़ते थे। फिर भी उनकी उतनी कमाई नहीं थी जितनी पुरुषों की थी। उनके द्वारा जो मजदूरी जो है सो उन्हें मिलती थी वह उनके समकक्ष जो पुरुष काम करते थे उनकी तुलना में बहुत कम होती थी। इसके लिए जो है बहुत हद तक समाज में प्रचलित पारंपरिक विचारों को भी जो है दोषी माना जा सकता है, क्योंकि लोगों का मानना था कि महिलाएं जो हैं जैविक और सामाजिक रूप से पुरुषों से अलग हैं। इसी प्रकार इनकी भूमिका सिर्फ घर के कामों के लिए है, इन्हें सार्वजनिक या राजनीतिक कामों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता था। यहां तक कि रूसो और मार्को केडी क्वाड्रेसेट जैसे प्रबुद्ध दार्शनिक और लेखकों का भी मानना था कि महिलाओं के लिए सबसे अच्छा काम जो है उनका जो है घर की देखभाल करना। Women drew a great inspiration from the revolution. They organized their own political clubs and launched newspaper in order to discuss and highlight the issues related to them. Around 60 clubs were established in various cities of France. Of these, the Society of Revolutionary and Republican Women was the most renowned club. It was established in Paris in 1793. Its main objective was to make the authorities know the grievances of the women and also to make women aware of their rights. It is worth mentioning that women gained nothing from the Constitution of 1791. They were classed as passive citizens and hence had no voting rights. The women leaders like Pauline Lyon and Claire Lacambe drew the attention of the authority regarding the shortage of food and demanded a strict control on prices. Their major demand included the right to vote, to be elected to the assembly, and to hold political offices. They were fully convinced that it was only through political rights that their interest would be represented in the new government in a better way. महिलाओं ने क्रांति से उन्हें बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त हुई। उन्होंने अपने लिए राजनीतिक क्लबों का स्थापना किया और उस क्लब में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना, उस पर प्रकाश डालना और न्यूज़पेपर का भी उन लोगों ने छापने का जो है
काम किया, न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया, जिसके माध्यम से वो अपनी अपनी मुद्दों को, अपनी परेशानियों को, अपनी बातों को, अपने डिमांड्स को जो है वो रखने लगी। फ्रांस के विभिन्न शहरों में लगभग 60 क्लब स्थापित किए गए। इनमें से रिवॉल्यूशनरी और रिपब्लिक महिलाओं का समाज जो है सबसे प्रसिद्ध जो है क्लब था। 1793 में पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं के अधिकारों और शिकायतों को जानना और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना था। यहां यह बात ध्यान देने वाली बात है, उल्लेखनीय है कि महिलाओं को 1791 के संविधान में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें पैसिव नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, इसलिए उनके पास मतदान का कोई अधिकार नहीं था, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। पॉलिन लियोन और क्लेयर लेकॉम्बे जैसी महिला नेताओं ने भोजन की कमी के बारे में जो है उस समय की जो अथॉरिटी थी उसका ध्यान जो है खींचा और कीमतों पर सख्त नियंत्रण की मांग की। उनकी प्रमुख मांगों में वोट देने का अधिकार था, फिर असेंबली के लिए चुने जाने का अधिकार था और पॉलिटिकल कार्यालय जो है रखना शामिल था। वे पूरी तरह से ये जो है बिल्कुल आश्वस्त थे कि सिर्फ राजनीतिक अधिकारों के माध्यम से ही नई सरकार में वो जो है बेहतर तरीके से उनका प्रतिनिधित्व हो पाएगा। It is quite important to know that revolutionary government during the early years of its reign introduced some laws to help improve the lot of women. State schools were established and elementary education was made compulsory for all girls. They could not be forced to go into matrimonial alliances against their will. It is worth mentioning that marriages was made into a contract entered into freely. It was registered under civil law. Divorce was made legal. Both men and women could apply for it. Mothers were given the right to the custody of children. In 1793, the married women were given the rights to share family property. Girls also got equal inheritance rights. Moreover, women were entitled to train for jobs, to become artists, or to run a small business. यह जानना काफी महत्वपूर्ण है कि रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में औरतों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ नए कानून बनाए। इसके लिए क्या किया गया? स्टेट स्कूल बनाए गए, राज्य सरकार के द्वारा चलने वाले जो है स्कूल स्थापित किए गए, जिसमें सभी लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा को जो है जरूरी घोषित किया गया। उनको जबरदस्ती जो है उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी ये जो है उन्हें वैवाहिक बंधन में बांधा नहीं जा सकता था। यहां खास ध्यान देने वाली बात यह है कि विवाह को अब जो है अब हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की जगह इनको मुक्त रूप से जो है इनको जो पारिवारिक गठजोड़ के बजाय इसे मुक्त रूप से इसको स्वीकार किया गया। इसको जो है सिविल लॉ के अंदर में इसको पंजीकृत किया गया। तलाक को कानूनी बना दिया गया और महिला और पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते थे। माताओं को बच्चों की कस्टडी का अधिकार दिया गया। 1793 में विवाहित महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में भी हिस्सा मिला। उन्हें लड़कियों को भी समान अधिकार मिले। इसके अलावे महिलाओं को नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करने, उन्हें कलाकार बनने और छोटे व्यवसाय चलाने का अधिकार दिया गया। Women's struggle for equal political rights continued for a long time. Many restrictions were put on women activities during the reign of terror. Their political activities were banned and laws were issued regarding the closure of women's clubs. A number of prominent women like Mrs. Jane Ronald were arrested and put to guillotine. However, these atrocities failed to dishearten the women folk. The ideal set by the French women through their political activity during the revolutionary years served as an inspiration for the coming generation. Finally, it was in 1946 that the French women won their right to vote. समान राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जो है लंबे समय तक जारी रहा।
जब रॉसबेरी का शासन था, जिसको हम लोग रॉबेस्पियरे का शासन था, जिसको हम लोग आतंक का शासन कहते हैं, उस दौरान महिलाओं की गतिविधि को जो है पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महिला क्लब को कानूनन जो है सो बंद कर दिया गया। मैरी जिन और रोनाल्ड जैसी प्रमुख महिलाओं को गिरफ्तार करके उनका सिर जो है काट डाला गया। हालांकि ये अत्याचार जो है, ये सभी अत्याचार भी महिलाओं की हिम्मत को नहीं तोड़ सके। फ्रांसीसी महिलाओं द्वारा फ्रांसीसी औरतें जो है अपनी राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा क्रांति के वर्षों में एक आदर्श जो है सो सेट किया। उन लोगों ने एक आदर्श जो स्थापित किया, वह जो है आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम आया। और अंत में 1946 में फ्रांसीसी औरतों को जो है वोट देने का अधिकार मिल गया। यही इसका गेन था। कब मिला अधिकार? 1946 में। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हम लोग जो है सो अगले क्लास में आपका जो है अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन, गुड बाय।